Okay. So in the last class, we did start with permutation. If we have n distinct objects, then number of permutations by taking r at a time was npr, right? So if you want to arrange r objects out of n minus r objects, the formula would be npr, and it is n factorial by n minus r factorial. But sometimes you come across this is when all objects are distinct. जैसे कि like if you have three letters, a number of ways or to arrange two letters was AB, BA would different, BC, CB would be different, AC and CA would be different. The number of arrangements were 3P2, that is 3 factorial by 3 minus 2 factorial, which is 6 by 1, that is 6. हमने इसको मैनुअली भी किया था. So if you want to arrange two letters out of three letters, then the number of arrangements were 6. लेकिन suppose if these three letters are not distinct, अभी they are all distinct. मान लो two letters are identical. We have AAC. फिर क्या होगा? AAC अगर होगा, so in place of B I write A. This is AA. This would be also AA. This would be AC. This would be CA. This would be AC and CA. How many arrangements are there now? अगर तीन लेटर्स में दो आइडेंटिकल हैं तो कितने अरेंजमेंट हुए अब? कैसे? एक और दो और तीन. Only three arrangements are there. That means this time the number of arrangements have decreased. अगर सारे के सारे लेटर आइडेंटिकल हुए तो फिर क्या हुआ? In that case, all identical letters, only one arrangement would be there. एक A. तो अगर all the objects are not distinct, then the number of permutation will reduce. It will decrease. So if we have, suppose, m objects, all one type, then we have n objects, all another type, and say we have p objects, all yet another type. And we have, suppose, q objects, all different. So in that situation, how many permutations would be there? That's the question. If we have m objects, all one type, n objects, all same type, p objects, yet another type, and q all distinct. So उस situation में number of permutations would be m plus n plus p plus q factorial divided by m factorial, n factorial, and p factorial. Basically repetitions से divide करना है. You need to divide the total number of permutation by the numbers which are being repeated. For example, for this, it will be 3 factorial divided by number of repetitions 2 factorial. Answer is 3. 1, 2, 3. इस वाले में क्या हुआ? Total by 3 factorial. Answer is 1. Only one permutation is there. So whenever objects are not distinct, they're identical, then you use this formula.
Suppose we have a word mathematics. If all the letters of the word mathematics are permuted, then how many words would be there with or without meaning? If all the letters of the word mathematics are permuted, क्या हुआ अर्षा? लास्ट क्लास में तुम नहीं आई थी? सर नहीं भी लास्ट क्या क्लास हुआ? प्री बोर्ड्स चल रहे तो बीच बीच में जब लगता है प्रिपेयर करना पड़ेगा तो छुट्टी लेनी पड़ती है। ओके, सो number of permutations of the word mathematics. If all the letters are taken, then how many words can be formed? करो. Number of words with or without meaning formed by taking all the let all the letters of the word mathematics. All the letters of the word mathematics. So how many total letters are there? कितने हैं? 11. So it will be 11 factorial. But repetition कहाँ कहाँ हो रहा है? A is there 2 times, and then M. T is 2 times. So that's your answer. If all the letters of mathematics are permuted, then the number of permutations, number of words with or without meaning would be 11 factorial by 2 into 2 factorial by 2 into 2 factorial. 11 factorial by 8. ये आंसर है. ठीक है. Next. Now we have a word examination. The first part of the question is, if all the words, all the letters of the word examination are permuted, then total number of words formed. If all the letters, the word examination, are permuted, then total number of words formed. So we have these many 11 letters are there. So this is similar to जो भी किया था, है ना? This part is similar to what we have just done. 11 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. First part हो गया. Because we have permuted all the letters. अब next part लिखो इसका. If only 4 letters are taken, if only 4 letters are taken and permuted, then total number of words. So basically this time we are taking only 4 letters. We are making a 4 letter word. Hmm.
एग्जामिनेशन से 4 लेटर सेलेक्ट किए और उनको परम्यूट किया। इस बार तुम्हें केसेस लेने पड़ेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस। लाइक फर्स्ट केस व्हेन ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। चारों 4 लेटर्स, all 4 letters are distinct. Then there could be two identical, two distinct. Then there could be two identical letters. So सारे cases लेके फिर solve करोगे। कैसे? 11P4 में तो आइडेंटिकल भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं तुम्हारे पास? 11 कहाँ है डिस्टिंक्ट? 5 कहाँ है? डिस्टिंक्ट लेटर्स आर ई, एक्स, एम, टी, ओ, एन, ए, आई। All these are distinct. These are 8 letters which are distinct. So you can take any 4 out of these 8 distinct letters and make word. So it would be 8P4. So 8 factorial by 8 minus 4 factorial. देखो कितना आ रहा है ये? So we have taken 4 letters out of 8 letters. And this is the answer. With only one case. ये कितना आ रहा है? 1680. But this is not the answer. More cases. Suppose we have a situation when 2 letters are distinct and two are identical. ये वाला बनाओ अब। पहले सिलेक्शन कर सकते हो, देन यू कैन परम्यूट देम। 2 लेटर डिस्टिंक्ट है, 2 लेटर आइडेंटिकल है। हाउ मेनी वर्ड्स दिस टाइम? लाइक यू कैन सेलेक्ट NN and then other two distinct. Two identical, two distinct. Two identical, two distinct. Suppose I've taken NN as identical pair, then I take other two as distinct. अब डिस्टिंक्ट कौन कौन से बचे हैं मेरे पास? ई, एक्स, एम,
TOAI. If I take one NN, and then I can select two out of these two. So NN को मैंने select किया 1C1 से, and out of these 1 2 3 4 5 6 7, I select two distinct and two identical. But this is selection. अब इसको परम्यूट भी करना है. हाँ, दो लेटर है ना ये. इनटू, अब इनको परम्यूट करो. I have two identical, two distinct. So 4 factorial by 2 factorial. 2 factorial क्यों डिवाइड हुआ? Because two letters are identical. But in place of NN, I can also take AA, or I can take II also. तीन cases बनेंगे. So you can multiply this by 3 into 3. So this is the situation when two letters are distinct and two are identical. Because two letters are identical, two are distinct, चार letter हैं, तो permutations. अभी जो फॉर्मूला किया था रेपिटेशन वाला, उससे डिवाइड किया ना दो. हाँ, वो एक ही, फिर 3 से मल्टीप्लाई मत करो. टू फैक्टर्स से डिवाइड किया, दो लेटर आइडेंटिकल हैं चार में से. ये कितना आ रहा है? तो कुड यू एक्सप्लेन द सिलेक्शन फिर से, वो कैसे किया था? सपोज मैंने एक NN पेयर फिक्स कर दिया, ठीक है. आउट ऑफ द थ्री पेयर्स आई हैव टेकन वन पेयर. So once I decided that NN has to be taken, then the distinct letters would be EXMTOAI. The distinct letters are EXMTOAI. तो वो 7 letters हैं, 7 में से दो ले लिए. That means two identical letters NN and 7 other में से दो ले लिए. So I have selected 4 letters. Now I permute them, arrange them, but two are identical, so divide by 2. एंड इंटू 3 क्यों किया? बिकॉज NN की जगह A भी आ सकता, II भी आ सकता. तीन केसेस हो गए. सो दैट इज द थिंग. ठीक है. कितना आ रहा है ये? 7 इंटू 6/2, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, बाय 2 इंटू 3. मल्टीप्लाई करो. सेवन 56. हम्म. हम्म. 42 इंटू 20 18 हो गया ना. 7 50 और 20. 1680 plus 756, but it's not the final answer because this is a third case also. The last case कौन सा हुआ? Case 3, when you have two identical pairs. Two identical letters. चार लेटर का वर्ड है, उसमें दो दो के आइडेंटिकल लेटर्स हैं. So we have AA, we have NN, we have II. So out of AA, NN and II, you basically select two pairs. So तीन pairs में दो select कर लिए. अब तुम्हारे पास चार लेटर आ गए.
हो सकता है ये 4 लेटर आ गए हो, ANN। तो कितने वैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3C2 3C1 होता है। नाउ यू कैन सम अप, तीनों को ऐड कर लो। दो दो आइडेंटिकल, 4 लेटर आ गए, उसमें दो दो आइडेंटिकल है, तो डिवाइड हो गया। ऑल राइट। Prisha अंडरस्टूड, अर्शिया? यस सर। Yes, sir. क्या आ रहा है टोटल? टोटल कितना आ रहा है मेरा? 2454. 2 2454. 2454, यही है ना? So that is the total number of words with or without meaning, which basically have 4 letters. अगर ये सारे लेटर डिस्टिंक्ट होते हैं, then तो 11C4 was the answer, 11P4 would be the answer, but इसमें repetition था, इसलिए मैं cases लेने पड़ गए, right? Now for the last 2-3 years you'll come across questions where rank of the word is asked, huh? Like if all the letters of the word mother are arranged as in a dictionary, what is the rank of the word mother? If all the letters of the word random are arranged as in a dictionary, what is the word rank of the word random? Small, ये सारे आ चुके हैं प्रीवियस सेंटेंसेस में। कोचिन, सचिन, 20। अभी करते हैं, पहले वाला स्टार्ट करते हैं। If all the letters of the word mother are arranged as in a dictionary, what is the rank of the word mother? तो वैसे तो मदर की रैंक तो 1 है, बट दे आर आस्किंग रैंक ऑफ द वर्ड मदर। तो यू हैव टू फर्स्ट राइट दीज लेटर्स एज इन अ डिक्शनरी। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ई, एच, क्या हो गया, एम, और हाँ, ठीक है। तो वी हैव बेसिकली रिटन द लेटर्स EHMORT as in a as is in a dictionary, alphabetical order, right? So method is that first you arrange, you fix E on the first place, and then remaining, how many letters are there? 5. So remaining 5 letters, which are HMORT, they can be arranged in how many ways? Because there is no repetition, तो डिवाइड नहीं करना है। तो ई, वो सारे वर्ड जो कि ई से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर 120, दैट मीन्स मदर रैंक वुड बी मोर देन 120 फॉर श्योर। अगर कोई ऑप्शन 4 में से 120 से छोटा है, वो आउट है। नेक्स्ट यू कैन फिक्स्ड ई के बाद एच बाय 1 वे, एंड द रिमेनिंग EMORT, again 5 factorial, 120. That means rank of the word would be more than 240 now, because M से तो कोई वर्ड आया नहीं अभी तक। फिर H के बाद क्या आएगा? M ही आ जाएगा। तो बाई चांस अगर मैंने M फिक्स कर दिया, then again will be 5 factorial, but mother word would be somewhere in between. That means I know the answer. It lies between 240 and 360. The rank of the word mother would be somewhere between 240 and 360. If by chance one option is less than 240, one option is more than 360, both are out. Suppose for this question you have options 379, 308, 309, and
239. That means this is ruled out and this is ruled out. Answer has to be more than 240, less than 360. अब मदर वर्ड में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. एम ओ आई कांट फिक्स बिकॉज एम के बाद सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? एम ई. वी फिक्स एम ई एंड द रिमेनिंग 4 लेटर्स दे आर ऑल डिस्टिंक्ट. कौन कौन से लेटर है? ओ आर टी एच. 4 फैक्टोरियल. एम ई के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? एम एच. सो ओ आर टी ई. अगेन 4. दैट इज 24. एम एच के बाद क्या आएगा? एम ओ आ जाएगा. द मोमेंट यू फिक्स एम ओ, मदर वर्ड वुड बी देयर. सो वी कांट फिक्स एम ओ. अगर मान लो बाई चांस हमने एम ओ फिक्स कर दिया तो मदर वर्ड तो इसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा ना. देखो मदर में एम ओ से स्टार्ट होता है मदर वर्ड. तो यहाँ से कितना टोटल आ रहा है? 240 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो गया? 288. एंड इफ आई ऐड 24 ऑल्सो तो कितना हो जाएगा? इफ आई ऐड 24 टू इट कितना आ रहा है? 312. मतलब मदर रैंक इज नाउ बिटवीन 280 एंड 312. और दोनों ऑप्शन उसी में लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू फर्दर सॉल्व इट. सो नो लक. आगे बढ़ते हैं. सो आई कांट फिक्स एम ओ. वी कांट डू दिस. तो अब क्या करेंगे? एम ओ के बाद सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? एम ओ ई फिक्स कर दो. So we are fixing letter, 3 letters MOE. Remaining letters are R, T, H. So this is 3 factorial. 6. MOE के बाद क्या आएगा? MOH. That is R, T, E. Again 3 factorial. 6. Next. MOH के बाद ये दिल मांगे मोर. MOR. This is H, T, E. 3 factorial. अब MOR के बाद ही MOT आ जाएगा. तो या तो यू कैन सम इट अप. कितना आ रहा है टोटल? दिस इज 18 प्लस 288. कितना हो गया? 306. 306 आ गया. नहीं अभी आंसर तो आएगा बट अभी हम देखते हैं कि इसके बाद कैसे करना है. वी आर वेरी क्लोज टू द ऑप्शंस एंड द आंसर इज वेरी क्लोज. एम ओ आर के बाद सबसे पहले आएगा MOTEHR. सो दिस इज 1. MOTEHR के बाद you'll have MOTERH. सो 308 के बाद 309 वही आंसर है. सो द आंसर इज 309. सो वेरी नेक्स्ट वर्ड वुड बी मदर. Sometimes they ask how many words are there before the word mother. So answer would be 308. So question को ढंग से पढ़ लेना. Don't jump to the conclusion कि हमने किया था यस आता तो फटाफट कर दिया -1 हो गया. 5 मार्क का मतलब 500 से रैंक आगे पीछे हो जाएगी. So read the question carefully. कई बार they ask you which one of the option is wrong, is incorrect. You answer the correct one. 3 correct हैं उसमें. So need to be careful while solving this question. Random करो खुद से, small करो, सचिन करो. ये सारे एंट्रेंस में आ चुके हैं. अगेन में अगेन का रैंक क्या है और 49th वर्ड कौन सा है, 50th वर्ड कौन सा है? कर लो. टेक योर ऑन टाइम. दिस इज नो हरी. हाँ नहीं सारे नहीं, अभी और दे रहा हूँ. बहुत सारे करेंगे. बहुत फैशन में चल रहे हैं क्वेश्चंस. द लास्ट 3-4 years एवरी ईयर दे आस्क यू दिस ओनली. तुम रैंडम ही करो. रैंडमली रैंडम कर लो.
all these random क्वेश्चन है। देखो अगर तुम आर फिक्स, अच्छा वो कैसे किया था इसमें अभी तक, आर तुम कैसे ले लोगे पहले, अल्फाबेटिकल कौन सा आता है सबसे पहले? फर्स्ट यू राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्फाबेटिकली, रैंडमली थोड़ी लिख दोगे कुछ भी। अगर वर्ड रैंडम है, हाँ, पहले यहाँ लिख लो रैंडम, उसमें अल्फाबेटिकल इजी रहेगा। आर ए में तो रैंडम आ ही गया कहीं ना कहीं, अगर तुमने आर ए फिक्स कर दिया तो रैंडम तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हो गया। इफ यू फिक्स आर ए तो रैंडम तो आ गया ना इसमें कहीं ना कहीं। हाँ, यू कांट फिक्स आर ए, यू कैन फिक्स आर ए डी, फिक्स कर लो। हाँ, नहीं एक ही बार एल तो आ ही जाएगा ना, रैंडम जो है थोड़ा सा गलत क्यों आ रहा है ये? हाँ, तो हल्का सा बोर्ड पे करो, वैसे सही भी है लेकिन थोड़ा सा गलत है, आगे पीछे हो रहा है कुछ, लो। हम्म। हाँ तो अब देखो, यहाँ तक रैंडम नहीं आएगा ना, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, आर से कहाँ शुरू किया है? आर से कोई वर्ड वर्ड ही नहीं किया तुमने शुरू अभी तक, ये सारे वर्ड जो हैं ए डी। हाँ समझी, तो ये मिला लिया तो हो गया 720, तो इसमें से आएगा इसमें दोनों के बीच में। लेकिन आर ए रैंडम में आर ए आता है ना, तो यू हैव टू टेक नाउ। हाँ है, 740 आ तो इसमें रैंडम ही आ गया कहीं, नहीं गलत है, रैंडम तो इसमें ही आ गया, द मोमेंट यू फिक्स आर रैंडम आ तो गया। आर डी के आर, आर ए थोड़ी आएगा पहले, आर ए के पहले आर डी कैसे आ जाएगा? अ- अब देखो ना, आर ए डी आता है रैंडम में, तो आर एन आता है, तो आर एन के पहले आर एन डी आएगा, आर ए डी आएगा। आर ए आर ए फिक्स कर दिया तो रैंडम उसमें कहीं ना कहीं आ गया, तो यू कांट फिक्स आर ए, यू कांट फिक्स आर ए एन, आर ए डी करोगे बिकॉज अल्फाबेटिकली आर ए डी आ। सो टिल ए डी एम एन ओ, दिस इज 600 आ गया, तो टिल नाउ वी हैव नॉट फिक्स्ड R. Now she'll fix R, but the moment you fix R and permute, it will be 120. So you can't fix R. So the answer will be between 600 and 720. So she is fixing RAD. If you fix RA also, random उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा. तो she is fixing RAD. Because before RA and RAD आएगा. Before RN will be RAM. Now you can do one by one. RN के बाद, RM के बाद. हाँ तो अब RN DMO, randomo. This is one. अब रैंडमो में तुम RNDOM आ गया, तुमने तो 15 कैसे लिखा है आंसर फिर? ये तुमने लिखा है 15 कैसे आएगा, 14 नहीं आएगा, ये 12 हो गया, 1 + 1। सो रैंडम का रैंक है 614, ये है। भाई 600 तक तुम पहुंच चुके थे ना, देन ओ एम, पहले एम ओ आ गया फिर ओ एम आ, क्यों? 12 13 14, क्या हुआ मेरा ये नहीं आ रहा है? नहीं सर, हो गया। हो गया, ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन था, स्मॉल कर लो अब, बाकी मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, देख लो एक बार लिख लो, फिर करते जाओ। रैंडम स्मॉल कोचिन सचिन, अगेन में 49 50th वर्ड निकालना है,
G20 की रैंक, मैनकाइंड की रैंक, मंडे की रैंक, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये, जेई के। नेक्स्ट करो अब स्मॉल वाला। अभी का स्मॉल कर लिया? यस सर। कितना आ रहा है? 59। 59, 57 या 58? सर मेरा 58 है। यस सर, हाँ, मेरे 58। 58 आ रहा है। ऐसा का इससे सबसे पहले फिक्स किया ए फिक्स किया, LLMS, चार लेटर्स, लेकिन रेपिटेशन इज देयर, तो कितना हो गया ये? 12। फिर क्या फिक्स किया? एल फिक्स कर दिया एक, LAMS, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। रिपीटिशन नहीं है तो डिवाइड ही नहीं करना है। एल के बाद क्या आएगा? एम, LLAS, सो 4 लेटर्स, लेकिन रेपिटेशन हो रहा है, सो विल हैव 12। कितना हो गया अभी तक? 48। 48 में पहुंच चुके हैं। अब द मोमेंट यू राइट एस, यू फिक्स एस बाय वन वे एंड अरेंज द रिमेनिंग, तो तुम्हारा आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। दैट इज योर आंसर मस्ट बी बिटवीन 60 एंड 12। 48 एंड 60 के बीच में होना चाहिए। अब वी हैव टू गो बाय स्टेप, होले होले चलते हैं अब, है ना। स्मॉल आता, SM फिक्स कर दूंगा तब भी, तो SM फिक्स नहीं कर सकते, वी विल फिक्स SA, बिकॉज इफ यू फिक्स SA, स्मॉल कैन नॉट बी देयर, बिकॉज S के बाद A आ रहा है ना, अल्फाबेटिकली A पहले। SA आई फिक्स, टू LLMM, ये हो गया 3 लेटर्स, बट 2 आर रिपीटेड, so this would be 3, so 3 and 48 कितना हो गया? अब बाद में कर लेना। आफ्टर S इल हैव SL, स्मॉल इसमें भी नहीं आएगा, LAM, all distinct with 6, and after SL
After SL, what do you do? You have to have SM only, है ना? The moment you write SM, it will be A, it will be LL. So 48 plus 10, 58 is the answer. So rank of the word small is 58. Next क्या है मेरा? कर लिया? नहीं सर, अभी कर रही हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, मैंने क्या लिखवाया था इससे पहले। कोचिन सचिन अगेन। फोटो ले लो इसका। फिफ्टी एट। गर्मी तो नहीं लग रही? ऐसे कर। सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है, ऐसे ना माला जपो। सर कोचिन का आई थिंक 193 है। यू थिंक रॉन्ग। ओके अर्शिया, गॉट इट राइट। क्या बात है अर्शिया, तो आज तो बिल्कुल फॉर्म में आ गए हो तुम, सारे सही। यस सर, 10th में किया था, सॉरी 11th में। अगला प्रश्न क्या था? कोचिन, कोची। CCHIN। कर लो अब। द मोमेंट यू ओ क्या रे, तुम लोगों के चक्कर में सब भूल गया मैं। किया है, ठीक है। द मोमेंट यू फिक्स सी, तो 5 फैक्टोरियल आ जाता है 120, मतलब कोचिन वहीं पे कहीं कहीं आ गया। तो वी कांट डू दैट। एक्चुअली क्वेश्चन ये जे में आया था, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर द वर्ड कोचिन। या बट नाउ वी आर कोचिन, हाँ तो एक कम हो जाएगा ना उसमें। 120 तो सी से फिक्स करके आ रहा है, 190 कैसे हो जाएगा? नहीं, सही है तुम्हारा। सो इफ आई फिक्स सी सी and arranged permute the remaining, he know, he know is 4 factorial. All those words starting with CC will not have cochin in it. After CC, we'll take CH. So you have now CNO. Again 4 factorial, no repetition. 24. After CH, CI. Chino. Again 4 factorial. After CI, you have CN. CH. Geo. 96. Now the very next word would be Cochin. The moment you fix CO, it will be Cochin. Cochin का rank 97 है. Before Cochin you have 96.
अर्शिया G20 तुम चेक करो एक बार। ओके टी सर। T20 मैच तुम देखती हो, लेकिन G20 तुमने नहीं देखा इसका मतलब। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये रहा रैंडम। सचिन कोचिन अगेन G20 मैनकाइंड मंडे। क्या हो गया? हाँ तो तुम तो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। एंड में आधे आधे समझ में आ जाएगा। अब कौन सा कर रहे हैं? अभी तो अगेन भी था ना, पहले अगेन करो ना। सचिन भी तो कहे। सचिन भी है। हाँ, ये भी अभी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर द वर्ड सचिन। कर दो, बोर्ड पे कर दो। मुझे कर रही हूँ। 2092 आ रहा है। और G20 कितना आ रहा है? ये सही है शायद। एक सही है। वो बताओ इसमें 49th एंड 50th अगेन में। हम्म। इसका 49 50th। हाँ। सचिन के बाद अगेन। So the very next word will start from Sachin, would be this only, Sachin only, है ना? सचिन के पहले 600 वर्ड्स हैं और सचिन का रैंक 601 है। परफेक्ट। नेक्स्ट इज अगेन एंड अगेन का रैंक भी बताना है एंड 49 50th बड़ी। अगेन था भाई। हाँ, अगेन था। अगेन का रैंक निकाला तुम लोगों ने? अर्शिया, सचिन, अविका, मेरा। मैंने सर 49/50 का निकाला है। रैंक भी निकाल लो उसका। ठीक है सर, एक बार सर G20 का भी भेजा है। G20 का चेक नहीं, मेरे ख्याल थोड़ा गड़बड़ किया तुमने। ओके सर। दोबारा किया G20? अच्छा, ठीक है। दोबारा किया हाँ हाँ, अब सही हो गया। सर।
हम्म हम्म। उसका दिखाना मंडे का क्या था? मंडे मंडे। अगेन कर दिया। अगेन तो इसमें आ जाएगा, ए फिक्स किया तो। हाँ, इस अगेन के अगर तुम अरेंज करोगे तो 49th वर्ड कौन सा होगा, 50th वर्ड कौन सा, वही बताना। फिर अगेन का रैंक तो तुम्हारा आ ही चुका है। अगेन में द मोमेंट यू फिक्स ए, अगेन उसमें आ जाएगा ना। तो यू कांट फिक्स ए, तो क्या फिक्स करना पड़ेगा? दो लीडर लेने पड़ेंगे। ए फिक्स कर दो, वन वे से ए फिक्स कर दिया। जिन को अरेंज कर दो, सिक्स वे आ गए। अब ए के बाद, ए के बाद जी ही आ रहा है, मतलब वेरी नेक्स्ट वर्ड ए जी से शुरू करना पड़ेगा मुझे। ए आएगा ही आएगा, फिर आई आएगा ही आएगा, एन भी आएगा ही आएगा। सत्ता पे सत्ता, सेवन इज द आंसर। रैंक वाले चलते हैं अब। रैंक वाले के लिए 49th चाहिए ना, तो आइडिया ले लेते हैं कि इफ आई फिक्स ए बाय वन वे, तो अग्नि को तुमने फोर फैक्टोरियल से कर दिया अरेंज। ए के बाद क्या फिक्स किया? जी। फिक्स जी, इट विल बी ए, ए एन आई, आनी। आनी में दो ए आ रहे हैं, विल बी 12, 36 तक पहुंच चुके हैं, हमें जाना है 48 50 तक। आफ्टर जी यू फिक्स्ड विच लेटर? आई। आई को वन वे से फिक्स कर दिया, ए, ए जी आई, नहीं जी एन, आंगन। फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। लो कर लो बात, 48 वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, द वेरी नेक्स्ट वर्ड वुड बी 49th, so next very word would be starting from n, n alphabetically a, 49th, and the next n a, a 50th. So Nagi is the 49th, and n a I I G is, ये आ रहा है? क्या हुआ मेरा, कुछ गड़बड़ है? सर आई फॉरगॉट टू डिवाइड बाय टू, वो डबल ए वाला। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने? मंडे, G20। मंडे मैनकाइंड एंड, पहले जी आता है, पहले ए के बाद अल्फाबेटिकली। हाँ, तो एन के बाद तो ए ही आएगा सबसे पहले। हमें नेक्स्ट वर्ड ही तो निकालना है। वंस यू हैव रीच टू 48, तुम्हें नेक्स्ट वर्ड चाहिए। नेक्स्ट वर्ड एन से शुरू होगा। अब मुझे बताओ एन के बाद कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेटिकली, फिर कौन सा आएगा? ये दो ए है ना तुम्हारे पास, फिर
G20. So what is the order alphabetically in G20? E, G, N, then T, 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 W, Y, यही है ना? G20 में W तो आएगा। जिन लोगों ने सारे कर लिए वो कर दो, ये भी टफ एंड पब्लिक। घर में G20 हो गया था ना मेरा। आओ। सर मैंने मैनकाइंड का भेजा है। अच्छा, देखता हूँ मैं। सही है तुम्हारा मैनकाइंड का। ओके सर। कितना आ रहा है? ये गलत है। हम्म। बताओ। इससे पूछ लो। नहीं। कम हो तो रिपीट भी तो हो रहा है, T 2 बार आता है। जी के बाद क्या किया तुमने? ई कर लिया सबसे पहले, ठीक है। जी, जी में कर लिया, G20 आई गया उसके अंदर ही। नहीं तो अरेंजमेंट में तो देखो ना, 1 बाय 1 करना पड़ेगा ना उसके बाद। हाँ, ऐसे GN फिक्स करो, फिर जी फिक्स। पहले जी फिक्स करो, नहीं तुम्हारी इसकी बात करो, जी फिक्स करो फिर GN फिक्स करो। वो अलग कर लो तुम। मैनकाइंड वाला बहुत बड़ा आ रहा है तुम्हारा। बड़ा आएगा लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा।
जायना, प्रिशा, तुम लोगों ने किया? रिन? यस सर। यस सर। प्रिशा क्या आंसर आ रहा है? सर मैंने G20 का 553। ओके, नेक्स्ट। मैनकाइंड? सर अभी कर रहे हैं। ओके। मेरा मैनकाइंड सर कर आपको ली? टफ। टफ, हाँ टफ था, लेकिन मंडे भी था, मैनकाइंड भी था। मंडे मैनकाइंड कर लिया है, चेक नहीं किया लेकिन बट कर लिया। मंडे कितना आया है? 327। ठीक है। मैनकाइंड? 1491। नो, 1492। 92 ओके। अच्छा, आ रहा है, ठीक है। टफ कर लो, पब्लिक भी करूँ? ये लिख लिया। हो गया, मैनकाइंड हो गया तुम्हारा? हम्म You fix A. The moment you fix A, and then remaining six letters by N is there with 360. Then you fix D and the remaining 360. वन फोर फोर जीरो यहीं पे आ गया ना? उसके बाद वन बाय वन कर लो। MAN आता है मैनकाइंड में। Can't fix MA, you have to fix MA, MAD। MAD फिक्स करोगे। MAD के में अच्छा, दो से डिवाइड किया ना, ठीक है। तो इधर 24 हुआ ना, क्या 12 हुआ? अच्छा, मैन में तो मैन किया तो मैन काइंड आ ही गया इसमें। अच्छा, हाँ। सो इफ यू फिक्स MAD, 7 में से 3 फिक्स हो गए, 4 फैक्टोरियल बाय N is repeated twice, so will be 12।
After MAD, what do you fix? MAI. After MAI, you have to fix MAK. MAK भी आएगा ना? After MAK, what do you fix? MAN only. But in that you'll have MAM all. No, we have only one M. MANK, and then three letters are there, no? So it will be 3 factorial. 6. अच्छा सॉरी. हाँ. MA will be MA. So MAN. After D you have I. Now after that you have K only. K. Now you can do MANK D N. MAN K. नहीं K D N I. Then you have MAN K D के बाद I आएगा. I D N. And next would be mankind. चार. तो it is 1492. Then Monday. टफ पब्लिक हो गया. टफ का क्या आ रहा है? टफ का क्या आ रहा है? हाँ. बता रहा हूँ कहाँ गया पब्लिक. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. पब्लिक का क्या आ रहा है तुम्हारा? 582. नहीं सही है. अब तुम एक और कर लो फिर. नागपुर में 315 बताओ कौन सा वर्ड है. इफ यू अरेंज ऑल द लेटर द वर्ड नागपुर, फाइंड 350th word. If you have done Arshia, tough, public, you got it correct. The answer is right. ओके सर. नागपुर में 315 रैंक बताओ. मेरा 93 कौन सा आ रहा है तुम्हारा? सर वो टफ का आ रहा था. 93 है. ओके. अभी का पब्लिक. जैना 582 नहीं है पब्लिक का, चेक करो. हाँ पब्लिक का 582 है, सही है.
मंडे हो गया। मंडे का कितना था? 327 था शायद। मंडे का कितना है? 327। क्या हुआ? After tough in public, Nagpur in Nagpur, what is the rank? What is the word on rank 315? इसमें टफ तो आ गया इसके अंदर। अच्छा, कौन सा वाला? मंडे। थोड़ी सी गलती हुई है बस, एडिशन में गलती हुई है तो जस्ट चेक। एडिशन चेक कर लो। मंडे यहाँ तक क्यों कर लोगी? इसमें मंडे आ गया कहीं ना कहीं, शायद यही है। NRAPG। वाह, नहीं आ रहा है मंडे? ऐसा क्या? अल्फाबेटिकली क्या हुआ? ADM। द यू फिक्स A, रिमेनिंग लेटर्स कितने हो गए? 5। So 5 factorial is 120. Then you fixed D, again 5 letters, 120. After D you have M only, so you can't fix. So if you want to know the range would be, the range is 340, 240 to 360. That's the range. So this is not done. After this, what do you do? You have to fix MO, but you can't have MO, you have to fix MA. You alphabetically have MA. So it'll be 4 factorial because there's no repetition. 24. After that, you fix MD, 4 factorial. After that, MN, again 4 factorial, that is 24. So till now the total is 24, 24, 24, 72 plus 240. 72 plus 240 is how much? 31. Yeah, again. After MN, you'll have MO only. So, but you can't fix MO because Monday will be somewhere in Monday in this only. MOD. MOA, sorry. MOA we have fixed 3 letters. That is 6. After MOA, MOD.
So this is how much? 3, 324. After MOD, you'll have only MON only. So MON, MON के N के बाद क्या है? You'll have A, then you have D, and then you have Y. This is 1. And after this MON, A, YD, you'll have another 1. And after this MON, D will come here. 327. Otherwise, you can fix Mona and then 2 factorial. See, Monday would be somewhere here only. No, you can't fix M. So that tells you that the answer has to be less than 360. टफ का बहुत टफ नहीं था. It was 93. टफ का कितना रहा है? 89. आ जाओ तुम, सारे सारे टफ क्वेश्चन तुम ही करोगी. ये थक गई, लास्ट क्वेश्चन करिए, अब नहीं और नहीं करने की है. लास्ट 2 कर लेगी ज्यादा से ज्यादा. टफ कर दो, टफ है ना सबके लिए, तुम्हारे लिए इजी है. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम. काफी काफी लोगों का ऐसे ऐसे ही हो रहा है. फोकस करना पड़ता है. गो टू. अब टी यहीं से शुरू हो जाएगा. टी जी, टी एच, टी प्रिंसेस ऑफ रैंकिंग क्वेश्चंस. गरिमा आ गया. तुम ऐड कर, तुम मोबाइल से कर लो. पब्लिक का कितना आ रहा है? गरिमा पब्लिक का कितना था? हाँ वही है, 582 है. पब्लिक. अब मैं गरिमा को बार बार नहीं बुला सकता. और कौन कर रहा है? आ जाओ, आओ फिर आओ. हाँ वो गरिमा से करा लेंगे. सही आंसर करना, ये पब्लिक है, सब जानती है.
सही कर रही है पहली बार वो। ये कौन सा लेटर है? अच्छा, टी। आई। यूट्यूब पे चल रहा है ये लाइव क्लास। ये यू तो क्यों पहुंच गए तुम? ये क्यों ये पीयू में तो पब्लिक आ ही जाएगा ना। पीयू में पब्लिक आ जाएगा। नो नीड, पीयू नहीं करना है। और पीयू को 2 बार लिख रही है। और पब्लिक में भी आ गया, पीवी पीयूवी में पब में भी आ गया पब्लिक। तो इतने बार लिखो लोग। यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस आल्सो। एल एल के बाद पब्लिक ही तो आएगा। एल के बाद वही तो आएगा, पी। सो दैट्स व्हाई यू टेकन पी बी। बंद नहीं करना है। अब पी एल के बाद यू टू गो, लाइक यू कांट टेक पी यू। तो पी यू बी यू कांट टेक, तो पी यू सी आएगा अब। देखो पी। हम्म। तो पी यू ले, पी यू बी, पी यू सी फिक्स कर लो ना। हाँ बिकॉज सी, हाँ बिकॉज बी सी तो बाद में आ रहा है। तो पी यू बी एल हुआ अब, ठीक है। तो पी यू बी एल वी कांट टेक, विल टेक पी यू बी सी। सी लिख दो, सही तो लिखा है, पी यू बी सी। सो 2 factorial. Then after pu bc you'll have pu bi, again 2 factorial, and then now you'll have लॉ में ऐड करता हूँ उसको। ये आ रहा है ऐड करके 582। सही ऐड कर दिया मैंने। Right, ending the class. See you next time. Thank you so much. Thank you Same so day. much. Right. Thank you, sir. Bye.